السلام علیکم خواتین و حضرات، عید کی دلی مبارکباد کے ساتھ حاضر ہے آج کا خصوصی شو۔ آپ کا میزبان جنید سلیم، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے خوبصورت عزیزی صاحب اور میرے بہت ہی محترم تمام دوست۔ آج تو عید والے دن خوبصورت دوست کہہ کے تو مجھے عیدی دے دی ہے تو ورنہ ماشاءاللہ 11 سال ہو گئے ہیں بڑے منوس ہیں پائیں، مانتے نہیں ہیں اپنے علاوہ کسی کو۔ ذہن میں یہ پھنس گیا ہوا ہے کہ صرف میں خوبصورت ہوں، حالانکہ جو شائننگ لوگ آپ کے سامنے ہیں آپ کو چاہیے آپ ان سے بھی پیار کریں۔ ناظرین آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ ناظرین اصل میں اس عید کے اوپر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ایس او پیز کا خیال رکھنا جو ضروری ہے، گورنمنٹ نے جو کہا اور ویسے بھی میڈیکل اتھارٹیز بھی کہہ رہی ہیں ضروری ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا فاصلہ رہا ہے عید میں۔ گو ہم نے نہیں رکھا، ہم اسی طرح ببر شیروں کی طرح باہر نکلے اور نارملی 3 دفعہ ملتے تھے، آج پتہ نہیں کیا ہوا، 9 دفعہ مل رہے ہیں۔ میں کہا یار چھوٹی عید کی کسر نکال رہے ہو۔ نہیں 9 دفعہ وہ والے مل رہے تھے جن کو کرونا ہو چکا ہے، وہ غصے میں مل رہے تھے۔ عزیزی زلفی کی طرف نہیں دیکھا؟ یہ دیکھو عید کو بھی لگ رہا ہے جیسے انہیں دفتر جانا ہے۔ یار عید والے دن کئی لوگ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، اچھا یہ تو زیادہ ہی پیار کرتا ہے کوٹ پینٹ۔ اس کا جسم اس طرح کا ہے کہ وہ شلوار قمیض پہنے تو وہ پھر چنڈا لگنا شروع ہو جائے۔ پینٹ کوٹ پہنے تو ٹوتھ پک لگ یار یہ بندہ بہت غلط ہو گیا۔ آپ گوگے کو تو دیکھیں دولہا لگ رہے ہیں ذرا۔ میں کہتا ہوں جی گوگا جی تو آئے ہیں تو میں نے کہا کہ گوگا جی آج تو ماشاءاللہ پپو ہی دکھ رہے ہیں۔ شکریہ جی شکریہ۔ یہ کس بارات کا دلہا ہے یہاں پہ یہ بتاؤ؟ نارملی بارات سے دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، یہاں پہ یہ جاتا ہے بین شروع ہو جاتا ہے، دلہا آ گیا ہے دولہا یار یہ وہ اس برات کا دولہا ہے جڑی بس دی چھت تے بہ کے جانا ہے۔ کسی کا دل بھی رکھ لیتے ہیں سر جی، جس پہ دولہے جان جانے تو سلابہ ہے۔ اور سردی ایویں گلاں کری جا رہے ہیں سارے۔ جب میں دلہا بنا تھا نا تو میرا استقبال دیکھنے والا تھا، ہاں جی سارے پنڈ نے دوانے پھڑے ہیں، جدو دولہا آیا سب نے اپنا اپنا دوانا توڑے ٹھا 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 ٹھا۔ اچھا بات ہو رہی تھی عید کی، اس دفعہ جو عید ہم نے منائی ہے ایس او پیز کے بیچو بیچ اور ان کے تحت، اس میں یہ پھر ہمیں احساس ہوا ہے کہ زندگی جو وقت اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو زندگی عطا کی ہے، اس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی۔ بہت اچھا۔ آپ دیکھیں جب ہم نارمل زندگی گزار رہے تھے کوئی 4-5 مہینے پہلے تک کرونے کا نام و نشان نہیں تھا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ کوئی ایسا وائرس آنے والا ہے یا کوئی ایسی بیماری آنے والی ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے، جس سے اگر ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو یہ بیماری ہو گئی یا اللہ نہ کرے تو ماں اپنے بچے کو ساتھ نہیں لگا سکتی، او مائی گاڈ، اور باپ اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لگا۔ تو یہ اللہ پاک اس ساری چیزوں کو ختم کر دے، کرونا وائرس یہ وہ، تو ہمیں اس بات کا احساس ہر وقت دل میں رکھنا چاہیے کہ زندگی بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور خلوص سے زندگی گزاریں۔ تو آپ سب کو بڑی بڑی عید مبارک ہو ناظرین، اور آج چونکہ پہلا دن ہے عید کا اس لیے ابھی 2 دن باقی ہیں۔ گزارش یہ شروع سے ہی کر دوں میں، چونکہ میں یہ ایک بزرگ آدمی ہے، فلاسفر آدمی ہے، اس لیے یہ علم بانٹتا رہتا ہے، سو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس علم کے حوالے سے کہ باقی کے جو 2 دن ہیں وہ بھی ایس او پیز کا خیال رکھیں، اور آپ یہ ضرور دل میں ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 4-5 مہینے ہم نے بڑے مشکل میں گزارے ہیں، اس لیے اللہ نہ کرے دوبارہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی تک احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر ملکوں کی نسبت پاکستان کو اس کے نقصانات سے بہت حد تک محفوظ رکھا ہے، یہ وہ شدت دیکھنے میں نہیں آئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ مزید احتیاط کریں۔ بہت جی شکر ہے، اور ملکوں والا ہمارا حال نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے اس ملک میں اللہ والے لوگ ہیں، سائیں لوگ ہیں گوگے جیسے، ایسا سائیں کہ ہر عرس میں یردہ ضرور کھاتا ہے،
हर दरबार से भंडारा जरूर लेता है। इसका अकीदा है कि दरबार के अंदर सलाम करन जाओ ना जाओ, यरदे वाली देग तक जरूर जाओ। और गोगा जिस दरबार पे भी जाए ना, वहां के मलंग ध्यान करते हैं, कोई इतने धमाल ना पाई। छोटे छोटे बच्चे फिरंडे ने, बाहर कड्डो इन्हें, बाहर कड्डो। वेखना यार, गेट तक ध्यान रखना कि तेरे धमाल ना पा दे। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਗੋਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग एक मतलब इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है, बाकायदा मतलब रूहानियत में गर्क हुआ बंदा है, आप उसको बिल्कुल ऐसे एक लेते हैं जैसे हर वक्त उसका मुंह देख में घुसा हुआ है। जो आप बता रहे हैं रूहानियत में गर्क हुआ हुआ है, ये अरबी में रूहानियत हलवे को कहते हैं। यार ईद कुर्बान है और कुर्बानी की बात हो रही थी। हाँ अच्छा अजीजी भाई, इस दफा कुर्बानी कम हुई है वैसे? जी जी, ये जिस तरह थैले ने बाजू टंगे हुए हैं ना, इस तरह का कसाई बकरे की ओजड़ी निकाल के खुद उसके पेट में गिर जाता है बेचारा। बाकी इस दफा कम कुर्बानी हुई है, और उसकी वजह मेरा ख्याल है कि ये कोरोना का खौफ ही है। अच्छी बात है, कोरोना का खौफ भी, कुछ सीधी बात है कि माशी हालात भी आमतौर पे, मतलब पिछले साल जो थी वो 1 करोड़ 10 लाख जानवर ज़िबा किए गए थे। अभी मतलब ये बहुत क़ब्ल अज़ वक्त है अंदाज़ा लगाना, लेकिन एक रफ आइडिया ये है कि इस साल 90 लाख जानवर ज़िबा किए गए हैं, तो मतलब 20-30 लाख का फर्क पड़ा है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुआशी हालात भी जो हैं लोगों के, जी बिल्कुल, ज्यादातर वो बुरे हुए हैं और लोग बेचारे परेशान हैं। और चूंकि 4-5 महीने से अक्सर लोग जो मेहनत काश हैं वो बेचारे फारग बैठे हुए हैं, काम काज नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक मजीद रहमतें फरमाए और इस वायरस को मुकम्मल खत्म कर दे पूरी दुनिया से। अच्छा, एक बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जब भी हज का मौका आता है, लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं या कुर्बानी का वक्त आता है, मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ एक मुस्तकिल एक ट्रेंड नज़र आता है सोशल मीडिया पे कि कई लोग कहना शुरू कर देते हैं कि जी हज की बजाय, उम्रे की बजाय, कुर्बानी की बजाय ये पैसे किसी गरीब को दे दें। एक अजीब सा ट्रेंड है जो मेरी समझ से बालातर है कि गरीब को देने के लिए क्या आपके पास जो बजट है वो कुर्बानी वाला ही है, वो उम्रे वाला ही रह गया, वो हज वाला ही रह गया। 200 अरब रुपए के हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, 160 अरब रुपए के ये कौम सिगरेट फूक जाती है। वहां पर कभी नहीं मैंने सोचा हम बैरून मुल्क दौरों पे, अय्याशियों पे पैसे खर्च करते हैं। मैंने आज तक किसी ऐसी पोस्ट में नहीं पढ़ा कि जी इस दफा आप थाईलैंड ना जाएं, इस दफा आप नया मोबाइल ना लें, उसकी जगह आप किसी गरीब की मदद कर दें। इस दफा आप डॉक्टरों की सुन लें, बच्चों को सारा साल पिज्जा ना खुआएं, उनकी सेहत का ख्याल कर लें। बच्चों की सेहत भी ठीक और पिज्जे के पैसे जोड़ो ना, तो मेरा ख्याल है बकरा क्या अच्छा बड़ा वैड़ा आ जाता है। और अगर तुसी गोगे दे पिज्जे के पैसे जोड़ो तो ऊँट भी कर सकते। गोगा जी आप शर्माए ना, मुझे पता है आप माशाल्लाह दानिशवर हैं, इन्नी दानिश ते तूड़ी ना मिला के खा जाते सर यार, वो तो दाना होता है, मैं दानिश समझ रहा हूँ। हम लोग वो किसी भूख की वजह से नहीं खाता, वो कहता है कि यार बकरे ने नहीं खाया, रिस्क जाया हो रहा है तो खा लेता है। तो फिर कल अपने बकरे का खाया करे ना, मल्ले दे मज्जां गावां दा भी ना खाया। तो बात जो हो रही थी वो ये थी कि इस दफा जो कुर्बानी कम हुई है, हाँ जी, उसमें मेरा ख्याल है कि वरिड नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अल्लाह पाक के हजूर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो हालात थे मैं समझता हूँ कि उस हवाले से तो हम पूरी दुनिया से काफ़ी बेहतर रहे, शुक्र, और इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। वरना अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ हर चीज़ मौजूद है और साइंस जो है वो टीसी पे टंगी हुई है, इतनी तरक्की है साइंस की। 40 लाख केसेस हो गए, 40 लाख उधर। देखो ना जरा, बड़ी अल्लाह पाक की मेहरबानी है हम पे। पहले मस्कीन लोग थे, हमारे यहाँ अगर अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाते तो संभालना मुश्किल हो जाता, बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता। उससे भी नहीं संभाला जा रहा तो हमने क्या संभालना था। आज की सबसे बड़ी खबर तो सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज जो जुल्फी ने आके आज मुझे बताई है। इसने कहा कि मैंने अपनी कुर्बानी आज खुद ज़िबा की है। वाह वाह वाह, नहीं मुझे भी बताया इसने, कहता है जी बकरे को छुरी फेर के तो मैंने गलती से 4 पाए उतार दिए। बाद सोची पै गया कि टंगीए किवें।
जब इसने मुझे बताया तो मैंने कहा इसने 4 पैरों वाली कुर्बानी की नहीं होगी जो खुद की है, इसने कोई मुर्गी की होगी, चूजा किया होगा। ਬੱਕਰਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਫੀ ਕੋ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ। बकरा इसने ज़िबा किया ही नहीं है, पक्की बात है, मुर्गी की है। और मुर्गी करते हुए भी जैसे नहीं होता कि बैल या जो कुर्बानी है वो भाग गई उठ के, टक्कर मारी कसाई को, इसी तरह मुर्गी इसको टक्कर मार के भाग गई। मुर्गी ने ढा लिया इनू। यार मैं फजूल मजाक ना करो, बकरा किया उसने ये बात, गलती से उसने चारों पाए उतार दिए, उसे नहीं याद रहा, फिर बकरे की मिन्नतें की इसने खुद ही। कहते भाई जी साडे को तो हुण नहीं हो सकना, तुसी आपे ही कपड़े ला दियो। बकरे ने फिर रिटायर अफसर की तरह अपना गाउन उतारा है और किल्ली पे टंग के तो खड़ा हो गया। लो जी हुण कर लो जो मेरा करना है। और भाई ये जो आपने टिक्कियां खाई हैं उसी बकरे के कीमे की थी। ये जो मिठी टिक्कियां खाई, तुमने बेसन का बकरा किया। ईद ਤੇ ਮਨਾਈ ਹੈ ਜੀ ਗੋਗੇ ਨੇ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸੂਟ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬੂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਈਦ ਦੀ, ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ। नहीं यार विग ला के कटिंग नहीं कराई, विग ला के तो नाई नू फड़ा गया सी। क्या मेरे आन तक यदि कटिंग कर दी, मैं जरा आगो प्याज लसन ले आवा। अच्छा गौरी साहब, आप सबका बता रहे हैं, खुद भी तो बताया ना, गौरी ने बकरा लटाया ज़िबा करने के लिए, बकरे ने ऐसे देखा है, कहता ना तेरे हथों नहीं, कहता यार मैं 42,000 रुपया था ले आया था, बकरे ने जेब से 42,000 निकाला, इसको पकड़ा दिया, मुझे छोड़ दे। जी बकरे के पास 42,000 कहाँ से आ गए? ये बकरा था या जेब तराश था? बकरे ने कहीं से लिया होगा, उधार लिया होगा, और उसने कोई मंडी में कमेटी तो नहीं डाली। यार लड़ाई झगड़े तो बचने वास्ते फिर पैसे फाड़ लेंदा बंदा। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ। केस वाला बकरा वैसे ही नहीं हलाल। लोगों के प्लाट मतनाज़े होते हैं, इसका बकरा मतनाज़े। नहीं अगले कहते ने भाई जी हमें घर लैके जाइए तो दो पहले दी तारीख निकल आ, जज फैसला इहदे खिलाफ दे दे, साडे ते पैसे मारे गए। हाँ जी गौरी साहब, ਬਾਊ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बहना आपके बकरे की पूरी खाल उतर गई थी? हाँ जी। हाँ जी, इन्हू दे देना जी, इन्हें अगे कोट वाले बटन लवा के ते पानी। यार अल्लाह का खौफ करो यार, बकरे की खाल गोगे ने पहननी है, गोगे ने बाजू में डालनी है। अच्छा हमारी कुर्बानी का हाल तो तुमने सुन लिया है जी, आपने नहीं कुर्बानी की? सर की है, और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी है, लेकिन वही एक मसला जो हमारी सोसाइटी का भी है कि कसाई साहब कुर्बानी करके गए हैं, खाल उतारी है और शाम तक इंतजार करते रहे, आया ही नहीं। खाल जानवर की नहीं, खाल तो फिर तुम लोगों की उतर गई। ये सारा ईद का दिन गुजर गया जी कसाई का इंतजार का। उसने देखो कितनी अक्लमंद है, सियानी बिल्कुल बच्ची है। खावंद वाला साहब उसने कहा कसाई साहब दा कह के जांदे आ रहे हैं, बस शाम तक बेचारी इंतजार करती है। इट इज वेरी बैड टू। यार अच्छा भला स्मार्ट बंदा है उसका शौहर, तुमने उसको मक्खी चीना शौहर बना दिया। तुमने देखा हुआ उसका शौहर? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਵੀਡੀਓ। साथ मशवरा भी दे रहा होता है कि ऐसे मुक्का मारने का कोई फायदा नहीं, ऐसे करो। चल जरा बहना आपके बकरे की पूरी खाल उतर गई थी? हाँ जी। हाँ जी, इन्हू दे देना जी, इन्हें अगे कोट वाले बटन लवा के ते पानी। यार अल्लाह का खौफ करो यार, बकरे की खाल गोगे ने पहननी है, गोगे ने बाजू में डालनी है। यार वास्कट ते बनवा सकते हैं ना कोट ना से। मैं बकरे का पूछ रहा हूँ जीजी भाईजान, बकरा बन गए है ना पूरा? हाँ जी, हाँ जी, बन तो गया। उसमें चावल भर के पूरे मोहल्ले में बांट दे। यानी उसके नजदीक बकरे में और मुंह में जाने में वाहिद रुकावट जो है वो खाल है। इनको छोड़ो, जो मैं बता रहा हूँ ना कि खुद कुर्बानी करनी चाहिए। ये वो जो हमारे दामाद साहब है ना, हस्बैंड तुम्हारे, जी, जी। उनको समझाओ, अच्छा। उनको कहो कि खुद खाल उतारनी सीख, नहीं तो फिर मैं लावा तेरी खाल। इतनी तड़ी लगा दो तो देखो वो कैसे सीखता है। यार बात मैं ये कहने लगा था कि असल में अब ये
कुछ हमारी भी गलतियां हैं। बिल्कुल सही। ये हस्बे माजी के तहत अगर गुफ्तगू मैं आपको सुनाऊं, हाँ जी। ये मेरे देखने की बात है। 80s में कह लें, 70s में कह लें, 90s में आके आहिस्ता आहिस्ता फिर ये काम खराब होना शुरू हो गया। जब ये मोबाइल फोन आम होना शुरू हो गया और कंप्यूटर ये आ गए, अपना टैबलेट और ये वो सारा कुछ, हाँ जी। बच्चे मसरूफ हो गए। हाँ। वरना मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस तरह अब मंडियां लगती हैं, जिस तरह बेतहाशा लोग 2, 3, 4, 5 दिन पहले बकरे खरीदने निकलते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बकरा तो लोग खरीद लेते थे 6-6 महीने, साल पहले उसको पालते थे। कोई जरूरत नहीं थी होती ऐसी मंडियां लगाने की हर घर में, या कह लो कि हर दूसरे घर में तकरीबन बकरा जो है वो साल पहले या महीनों पहले ले लिया जाता था, उसको पाला जाता था। बकरे को पालने के लिए बच्चे बड़ी हेल्प करते थे, माँ बाप को तो पता ही नहीं था होता, वो ले आते थे। फिर चूंकि अंदर वो क्या पबजी होती नहीं थी, तो फिर बकरे के साथ ही पबजी हो रहे हो। मैं कहना जी कि बकरे का इतना अंडरस्टैंड। एक मिनट, ये जिंदगी में मंजर ये भी देखना था हमने। क्या जुल्फी दोबारा करना? वाह 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 वाह, देखो इतना सा मुंह है सुई जैसा और पूरा किया हमने। बड़ी बात है। हाँ, बकरे की और बच्चों की इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती थी कि हलाल करते हुए बच्चे रोना शुरू हो जाते कि इसको ना हलाल करें, आगे बस 2 महीने बाद दाखिला शुरू होने वाला है, इसको हमारे साथ स्कूले दाखिल करें। बकायदा क्लास फेलो बन जाता था बकरा। अजीजी भाई, बाज लोग तो अब बकरे को साथ काम पे ले जाते थे और शाम को उसकी संगली खुली छोड़ते, वो मालिक के पीछे पीछे घर तक भी। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये क्या किया यार? ये क्या किया? यार बकरा तो टक्कर मारता है आगे से। उससे अगर हो सकता है तो क्यों नहीं तुम करने दे। देखो, ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप ये किया करो, बल्कि 1-2 और आवाजों की भी प्रैक्टिस करो। यार ये ध्यान में रखो कि जब बकरे को ऐसे करते हैं तो आगे से टक्कर मारता है। ये करेगा तो बकरे की हंसी निकल जाती है, किन्हों टक्कर मारा मैं। यार कोई बात नहीं, दिल नहीं छोटा करना, बिल्कुल नहीं दिल छोटा करना, कि पिंडा छोटा है तो दिल ना छोटा करना। बड़ा रिस्क लिया तुमने करके, ईद का दिन है, कोई हैपन हो जाता फिर। छोड़ दो यार, छोड़ दो, कोई हैपन नहीं होता, उसने अपनी गोर गर्दन पे किया है, उसे करने दो। तो कहना मैं ये चाह रहा था कि बकरा भी खरीदा जाता था, पहले खरीदा जाता था, उसे पाला जाता था, और उसके पालने में भी कोई खर्चा नहीं था होता। ये अब ये दुकानें खुल गई हुई हैं, कोई बंदा शिकाला रख के बैठा हुआ, कोई दाना रख के बैठा हुआ, ऐसा तो होता ही नहीं था। बिल्कुल सही। बकरा ले आते थे, वो महलों में इधर उधर चार चोर कहीं काशा खा के तो पल रहा होता था। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह खैर करे, बड़ी देर से टांग पे टांग रखी है जुल्फी ने, कहीं जुड़ी ना जाए। आहो यार जी, मैं कुल्फियां नहीं कट्ठियां पइयां जोड़ जाती देर नहीं, खुली है, खुली है। अच्छा भाईजान, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे बड़ी ईद पर जो कमर्शियल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है मवेशियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से। हाँ जी। आप ये सुन के हैरान हो गए कि वतन अजीज में 300 अरब रुपए के मवेशियों की खरीदो फरोख्त होती है। 300 अरब रुपए, और कमोबेश 10 से 12 लाख लोग जो हैं वो इस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं या बराह रास्त जानवर पालते हैं। असल में शहरों में रहने वालों को अंदाजा नहीं है कि हमारे दही कल्चर में ये कितनी बड़ी एक्टिविटी है। आमतौर पे कहा जाता है कि जी गंदुम जो है वो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी जो जरिया आमदन बहुत बड़ा है, और सारी उनकी एक्टिविटी, सारी जिंदगी जो है वो गंदुम के गिर्द घूमती है। बे नहीं, इसी तरह हमारे देहातों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ उनका दारोमदार, जो पूरी जिंदगी का दारोमदार जो है मवेशियों पे होता है। हमें अंदाजा नहीं है, शहरों में रहने वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बल्कि अब वक्त आ गया है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, वो भी जरा इस तरफ तवज्जो दे। पाकिस्तान के पास एक बड़ा नादर मौका है कि वो लाइव स्टॉक की एक्सपोर्ट में जंप इन करे। क्योंकि देखें, आप बहुत सारे जो लाइफ स्टॉक एक्सपोर्टर मुल्क थे वो बिल्कुल उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या बिल्कुल स्टॉप होकर रह गई है कोरोना की वजह से। तो पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत मुल्कों, बल्कि चंद क्या 2 या 3 खुशकिस्मत मुल्कों में जहां पे लाइफ स्टॉक के मौके भी मौजूद हैं और वो कोरोना से बहुत ज्यादा मुतासर भी नहीं। देखो ईद के मौके पे
कमो बेश 300 अरब रुपए की खरीदो फरोख्त होती है जानवरों की। 300 अरब रुपए तो मामूली रकम नहीं है। बहुत ज्यादा जी। और ये वाकई तुम्हारी बात ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो पिंडों में, गांव में ये काम करते हैं। वो 20, 25, 30, 50 बकरे लेते हैं, उनको वो पाल लेते हैं, 4-5 महीने उनकी खिदमत खातर करते हैं, और वही बकरा जो उन्होंने 10-10, 15-15 हजार का खरीदा होता है, वो 35-40 हजार का एक बकरा बेचते हैं। और इस तरह कमो बेश एक अंदाजे के मुताबिक एक आम जो बकरा पालने वाले जो लोग हैं या मवेशी पालने वाले जो लोग हैं, वो कमो बेश जो है वो 3, 4, 5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। ये मतलब 30-35 हजार, 40 हजार रुपए महाना की आमदन बनती है। वो एक आम आदमी जो इतनी आसानी से नहीं कमा सकता। अब अगर ये इतने पैसे गांव के आदमी के लिए या कह लो कि ये टाइप बंदे के लिए तो बहुत है ना। अब वो गांव में ज्यादा है इसलिए ज्यादा, और फिर जगह भी वहां पे बहुत जगह की खुराक फ्री है वहां पे, खुराक फ्री है, खेतों में छोड़ दिया बकरा। हाँ, वो खा पी के चार चुर के एक सोटी पकड़ के बच्चा या कोई बुजुर्ग ड्यूटी दे लेता है, बकरी चरा लेता है, तो उसको वो मुफ्त में ही वड्डा कर लेते हैं। और वो हाँ सिर्फ टाइम लगता है ना, थोड़ी मेहनत ही होती है, और वो चार चुर कई वड्डे हो जाते हैं और अच्छे भले पैसे बन जाते हैं। ये चीजें जो हैं ये अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही। सोल हो गए हैं लोग। इसका ये मतलब नहीं है कि अब वैसे मौके नहीं है, नहीं है, हर चीज है, सही। लोग की सोल हो गए, लोग जो हैं वो अब उस तरह सोचते नहीं हैं। लोगों की ख्वाहिशात जो हैं, मेरे समेत हमारी लालच बढ़ गई है। हम ये छोटे छोटे काम जो हैं जो बड़ी सपोर्ट करते थे जिंदगी में हमारी, वो हम अब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमें ये है कि कोई बड़ा ही छिका वजे, वो लूडो खेड़ दिया तो बच जाता मस्कीन दा, कारोबार में फिर नहीं इतनी जल्दी बचता। इस तरह बकरे पालने का शौक जो है वो बिजनेस हो या इंडिविजुअल जो एक एक बकरा हम पालते हैं, अगर ये शौक दोबारा हमें पैदा हो जाए और हम इसकी तरफ ध्यान दें, तो वो जो बात की थी ना अभी पा जुनैद ने, वो बड़ी अहम बात है। वो जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि किस लिए कुर्बानी करनी है, खाई छोड़ना है ना, ये पैसे तुम किसी और को दे दो। भाई और को दे दो के लिए और पैसे अपने पास जमा करो, ये भी एक फर्ज है। कुर्बानी अगर आपके पास पैसे हैं तो ये फर्ज है, ये सुन्नत इब्राहिमी है, इसको आपने जरूर अदा करना है। इस तरह इसको इजी ना लें या इसको फालतू ना समझें, फालतू नहीं है, ये फर्ज है। अगर आप पैसे हैं आपके पास, आप साहिब हैसियत हैं, तो ये भी फर्ज है। तो ये आप इस फर्ज को आसान बना सकते हैं। इस फर्ज को आप जिस तरह मैं कह रहा हूं कि माड़ा आदमी भी पहले तो तगड़े भी होते थे, अब माड़ा आदमी बेचारा बकरा पाल के भी कर लेता है। तो पहले तो तगड़े लोग जो हैं वो बकरा पालते हैं। अब भी ऐसे लोग हैं जिनको वही पुरानी सोच है। बड़े बड़े मैंने अच्छे साहिब हैसियत लोग देखे हैं जो 5-6 महीने पहले बकरा ले लेते हैं और उसको पाल पोस के उसको पूरा मोहब्बत के साथ अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि फजीलत पैदा होती है, आपकी कुर्बानी में फजीलत पैदा हो जाती है। वो बड़ी कुर्बानी है उस बंदे की जिसने खुद बड़े लाड से प्यार से बकरा पाल के फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान। ये मुझे गोगे की बात बहुत पसंद है कि ये ईद कुर्बान से 3 महीने पहले मोहल्ले में घर घर सबको कायल करता है कि ईद पे कुर्बानी जरूर करनी है, कुर्बानी जरूर करनी है। अगर कोई इरादा किसी का डावाडोल देखता है ना, उसको समझाता है कि नहीं यार जरूर करनी है, जरूर करनी है। उनको पल्ले में पैसे दे आंदा, मेरे को कर्जा ले लो, आप फिक्र ना करें, मैं ईद वाले दिन गोश्त और कर्जा इकट्ठा ही ले जाऊंगा। और वजाहत कर देता नहीं, गोश्त में बेशक चर्बी हो, कर्जे में चर्बी नहीं होती। हाँ जी, कर्जा मैं खालिस ले लूंगा। अजीजी अल्लाह खैर करे, बड़ी देर से टांग पे टांग रखी है जुल्फी ने, कहीं जुड़ी ना जाए। आहो यार जी, मैं कुल्फियां नहीं कट्ठियां पइयां जोड़ जाती देर नहीं, खुली है ठीक है। अच्छा, तो बात हो रही थी कुर्बानी की। नहीं जी, बात हो रही थी मेरी टांगों की। यार वो तो खुल गई हैं, अब टेंशन खत्म हो गई है। कुर्बानी की मैं बात कर रहा था, छतरा पालने की, खुद पाल के फिर खुद हलाल करना, ये सारी चीजें जो है ना जी, ये हम लोगों ने बाकायदा खुद ग्रेजुअली खत्म की हैं अपने मुआशरे में। बिल्कुल सही। ध्यान देना छोड़ दिया है, बच्चों का ध्यान और तरफ लग गया हुआ है।
बकरा बड़ी बड़ी एक्टिविटी होती थी बच्चों के लिए, बड़ा एक एंटरटेनमेंट होती थी। उसको नहलाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते थे, सारे मिलके उसे नहला रहे होते थे। फिर वो चिट्टा सफेद जब सोख के निकलता था तो सारे बच्चे बड़े खुश हो रहे होते थे। फिर मेहंदी के साथ उस पे ईद मुबारक भी लिखते थे। और गोटे वाला दुपट्टा ऊपर डालना, पकाने सींगों के साथ बांधने। हाँ हाँ, कई तो मेहंदी के साथ ईद मुबारक के बजाय साथ अछू पहलवान भी लिख देते। भाई जी अछू पहलवान कौन है जी? दा बकरा है जी, वो है अछू पहलवान। तो उन्हें कहा अपने ढिड ते अछू पहलवान लिखे, बकरे ते लिखता। कहा जी गलती हो गई, उन्हें ढिड ते ईद मुबारक लिख लिया तो बकरे ते अछू पहलवान लिख लिया। तो इस तरह की चीजें होती थी। फिर ईद के दिनों में जो ईद से 1-2 दिन पहले उसको सुर्ख दुपट्टा उस पे डाल के उसको अपना गानी शानी पहना के, हाँ जी झांझरे पहना के, घुंघरू शुंगरू बांध के उसको फिर महल्ले की सैरें कराते थे और बड़ा एंजॉयमेंट होती थी। और फिर जब वो कुर्बानी होती थी तो एक बाकायदा समा होता था। जब बकरे की कुर्बानी हलाल उसे कर रहे होते थे तो सारा घर जो है वो उस सैडनेस में मुब्तला होता था उस वक्त कि हमारे को घर का फर्द कुर्बान हो रहा है। बकरों के नाम रखे होते थे, बिल्लू, हीरा, गोगा। यार वो बच्चे का तो हो सकता है, बकरे का नहीं हो सकता गोगा। अजीजी जुल्फी ने जो बकरा लिया था वो इससे भी ज्यादा कमजोर, और उस पे लिखवाया हुआ था गुल्लू पहलवान। जिस बंदे को लिखवाने के लिए बुलाया ना, उसे कहा यार इस पे गुल्लू पहलवान लिखो। कहता गुल्लू पहलवान तो लिखा जाएगा, लिखूंगा किस जगह पे? उन्होंने को कहते बैनर ते लेके बकरे नु फड़ा दे। कहता लोग यार चावल के दाने पे भी लिख देते। नहीं कहना इस पासे गुल्लू लिख दे, इस पासे पहलवान लिख दे। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ईद से पहले 10 दिनों में जो है 90,000 फ्रीजर फरोख्त होता है। 90,000। इसका मकसद साफ जाहिर होता है कि हम गोश्त जो है वो किस तरह नदीदों की तरह महफूज करना चाहते हैं पूरे साल के लिए। अच्छा भाईजान, ईद कुर्बान के मौके पे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा तो मवेशी फरोख्त होते हैं ना। मवेशियों के बाद दूसरे नंबर पे मालियत में कौन सी चीज बिकती होगी आपके? शटाला शटाला सर तूड़ी दाना, ये सारी चीजें भी बिकती हैं, लेकिन हम अक्सर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ईद कुर्बान के मौके पे ईद से पहले जो 10 दिन है वो मवेशियों के बाद जो चीज सबसे ज्यादा बिकती है वो डीप फ्रीजर्स हैं। एक बदकिस्मती की बात भी है, हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। यानी एक रफ आइडिया ये है कि लाहौर की आबिद मार्केट और कराची की सदर और अब्दुल्ला हारून रोड की जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इन 3 मार्केटों में ईद से पहले 10 दिनों में जो है 90,000 फ्रीजर फरोख्त होता है। 90,000, यानी जो इन 3 मार्केटों में फरोख्त होने वाला जो सालाना उनका वॉल्यूम है उसका 70% बनता है। इसका मकसद साफ जाहिर होता है कि हम गोश्त जो है वो किस तरह नदीदों की तरह महफूज करना चाहते हैं पूरे साल के लिए। यानी हमारी कौम गोश्त को इतना प्यार करती है, बहुत प्यार करते हैं अपने लिए। वैसे ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी, और ये शर्मिंदगी की बात है। बिल्कुल, ये सचमुच सीरियसली बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम कुर्बानी, जिसका मतलब ही इसार है, उसका मुजाहरा और उसका सबक याद करने के लिए हम ये देते हैं कुर्बानी, और वही हम में नहीं होती। भाई आप क्या इसे साबित कर रहे हैं? क्या आप जाहिर करना चाहते हैं? आपके अंदर क्या खौफ है कि आपको क्या आइंदा गोश्त नहीं मिलेगा? बस यही है जो आपने कर लिया। कुर्बानी हो, शादी हो, गोश्त गोश्त हो रही होती है, गोश्त गोश्त हो रही होती है। और ये तो फिर आपने जुल्फी ते बेचारा इतना भी गोश्त नहीं कहते। नहीं, वो बेचारा आप वैसे भी लालच नहीं करता है। ची लंगर एक बोटी लेंदा कलेजी दी ते परे बह के अपना पूरा दिन नारे लगा रहता।
तो ये जो गोश्त है कुर्बानी वाला, कुर्बानी, खुदा वास्ते इसको फ्रीजर की बजाय गरीब के पेट में डालें, इसको महफूज करने की बजाय इसको बांटें, तकसीम करें। जैसा इसका तकसीम का हुक्म है उस पे अमल करें। आपके बकरे में एक हिस्सा है आपका और वो सिर्फ पुठ और चांप नहीं है। वो उसको ये ना करें कि आप पसलियां पुसलियां गरीबों को पकड़ा दें और बाकी अच्छा खुद रख लें। महीने महीने तक भी जाते हैं जीजी, कई महीना महीना खाते हैं गोश्त। कैसे? हाँ जी, महीना तुम कह रहे हो, मैं कहता हूँ 2-2 3-3 महीने चलता है ये ऐसे ही है। कुर्बानी वाला। कस्टर्ड में भी हम गोश्त मिक्स करके खाते हैं 3 महीने। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पंजाबी में ला निकालना, हम ला निकालते हैं। बहुत बहुत बुरी बात है, बड़ी, मैं कहता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी वाली और अफसोसनाक बात है। यानी कि जीजी भाई सारे बकरे का गोश्त बना के मिक्स करके फिर उसको तकसीम करना हाँ जी, उसको तकसीम करें और एक हिस्सा जो है वो आपका है, उसमें 3 हिस्सों में से एक आपके रिश्तेदारों का और हमसायों का और एक गरीब का। गरीबों का। जिसने सारा साल गोश्त नहीं खाया होता उस तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैंने कई ऐसे मुखय्यर हजरात और ऐसे दिल वाले लोग देखे हैं जो एक बोटी नहीं कर रखते। वो कहते हैं कि यार ठीक है, एक हिस्सा अपना है मगर सारा साल खा ही रहे हैं, क्या करना है, सारा ही दे दो गरीबों को। ये बड़ी उसकी फजीलत है, इसी का नाम ये सोच कुर्बानी है जी, इसी का नाम। और इसमें भी हम फिर वही मतलब दरखास्त ही करेंगे अपने व्यूअर से कि बजाय ये कि पेशावर भिखारी जो है जो उसको स्टोर करके बाद में फिर फरोख्त कर देते होटलों के आगे भेज देते हैं, छोटे छोटे होटलों के उसकी बजाय बहुत बेहतर है कि आप अपने गिरदो नवाह में तलाश करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, तरद्दुद करें, तकलीफ करें और खुद उन लोगों के घरों में गोश्त दे के आए और वाफर दे के आए बाकियों की निस्बत, जिनके बारे में आपको ये पक्का यकीन है कि ये इन्होंने कुर्बानी भी नहीं की और इन्होंने ना जाने कितने अरसे से गोश्त नहीं खाया। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि आप कोई चीज लेने के लिए निकलते हैं ना तो आप मार्केट फिरते हैं, हाँ जी, कहाँ से आपको अच्छी मिल जाएगी, कहाँ से आपको असली मिल जाएगी। हाँ, कई ऐसी चीजें होती हैं कि हम हर दूसरे दिन ये करते हैं कि हम जी। मार्केट में कोई फिर चीज फिरा लेने कर जाते लेते हैं, हैं, हाँ। तो हम फिरते हैं कि कहीं से ठीक 1 नंबर खालस मिल जाए। तो जब आप नेकी के लिए निकलते हैं तो वो भी आपको 1 नंबर खालस ढूंढने में वक्त लगाना चाहिए, उसके लिए भज नस करनी चाहिए। और 1 नंबर खालस नेकी फिर यही है कि आप प्रोफेशनल फकीरों बेकारियों की बजाय आप गरीब आदमी जो सफ़ेद पोश है, जिसके पास वाकई ऐसे इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को कभी गोश्त खिलाए। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी के घर में वो डिजर्विंग है बंदा, उसको आप देना चाहते हैं लेकिन उसके घर में पहले ही लोगों ने गोश्त दिया हुआ है, तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि उसका हिस्सा जो है वो अपने फ्रीजर में, आपने अपने लिए जो ठोसा हुआ है फ्रीजर, तो कम से कम थोड़ा सा हिस्सा गरीब के लिए भी रख दें। आप 10 दिन बाद उसको दे दें जाके, जब उसको जरूरत होगी उसके घर में, अगर फ्रीजर नहीं है तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो वो फ्रीजर को ही भर के तो बैठ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हुण कल इहदे च की पाना है, परसों इहदे च की पाना है, चौथे इहदे च की पाना है। रोज यही सलाह कर करके हम 2-3 महीने गुजारते हैं। और वाइंड अप बारबेक्यू पे होता है कि बारबेक्यू मस्ट है। हाँ, सबसे पहले गोश्त में अच्छी नीयत डालें आप। और अच्छी नीयत जो है वो यही है कि गरीब तक इसको पहुंचाए, माड़े आदमी के पेट में जाए ये, जो बेचारा सारा साल अपने बच्चों को गोश्त की बोटी नहीं खिला सकता। देखिए ये वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी दाल भी जो है वो भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र है। और कई लोग खाते ही नहीं है गोश्त, मगर ये एक दस्तरखान का स्टेटस समझा जाता है ना गोश्त को दस्तरखान का स्टेटस समझा जाता है, ऐसे ही है। हाँ जी। और आप माड़ा आदमी जो है बेचारा वो उसके जहन में ही होता है, उसके बच्चों में, जिसको नहीं हासिल होता, जिसके पास नहीं इतनी सकत के वो गोश्त खरीद सके, हाँ जी। उसके लिए बेचारे के लिए ये स्टेटस है, उसके लिए ये बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गोश्त खाऊं। तो ऐसे लोग जो बेचारे नहीं खा सकते या नहीं सारा साल खाते, उन तक इसको पहुंचाएं और अपने अपने फ्रीजर जो हैं उनको बेच के तो स्कूटर ले लें। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। और छोटी सी बात ये कि हमें आम तौर पे जिंदगी का बदतरीन सबक अपने पसंदीदा तरीन इंसान से मिलता है। वाह, वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।